کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، اور جس کا منہ بولتا ثبوت 10 اپریل کا ڈسکا کا الیکشن تھا۔ تو ایک دفعہ پھر میں پاکستان کی عوام کو مبارکباد دیتی ہوں، کیونکہ یہ ڈسکا کا الیکشن نہیں بلکہ یہ پاکستان کے اندر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کے خلاف ایک ریفرنڈم ہے اور ان کے گھر جانے اور ان سے نجات کی نوید ہے۔ ڈسکا کا الیکشن یہ پیغام ہے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی مافیا کے لیے کہ ڈسکا کی عوام نے 35 روپے سے 90 روپے کلو آٹا والوں کو مسترد کیا ہے۔ ڈسکا کی عوام نے 52 روپے کلو چینی، 120 روپے کلو کرنے والوں کو مسترد کیا ہے۔ ڈسکا کی عوام نے مہنگائی کی شرح 3% سے 18% پچھلے ہفتے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا اعداد و شمار آیا ہے، جو رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں 18% اضافہ ہوا ہے، ان کو مسترد کیا ہے۔ ڈسکا کی عوام نے 14,000 ارب کے قرضے میں ملک کو دھکیلنے والوں کو مسترد کیا ہے۔ ڈسکا کی عوام نے کشمیر فروشوں کو مسترد کیا ہے۔ ڈسکا کی عوام نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے اندر گروی کرنے والوں کو مسترد کیا ہے۔ ڈسکا کی عوام نے مفت دوائی کو 500% قیمت بڑھانے والوں کو مسترد کیا ہے۔ ڈسکا کی عوام نے ووٹ چوروں کو، الیکشن کمیشن کے عملہ چوروں کو مسترد کیا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو پاکستان کے اندر آنے والے ہر الیکشن کے اندر یہی نتیجہ آئے گا، اور وہ ثابت کرتا ہے ڈسکا کا الیکشن کہ جب RTS نہیں بیٹھے گا، جب الیکشن کمیشن کا عملہ چوری نہیں ہوگا، جب ووٹ کا ڈبہ چوری نہیں ہوگا، جب دھند کا پروپیگنڈا نہیں ہوگا، تو ووٹ ڈبے میں صرف شیر کا نکلے گا، مسلم لیگ نون کا نکلے گا، نواز شریف کا نکلے گا، شہباز شریف کا نکلے گا۔ اور کیوں نہ ووٹ دے پاکستان کی عوام نواز شریف اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو۔ 35 روپے آٹے والوں کو ووٹ دیں یا 90 روپے کلو آٹے والوں کو ووٹ دیں، کشمیر کے حقوق کی بات کرنے والوں کو ووٹ دیں، اس کا تحفظ کرنے والوں کو ووٹ دیں، یا کشمیر فروشوں کو ووٹ دیں۔ چینی 52 روپے 5 سال کرنے والوں کو ووٹ دیں یا 120 روپے کلو چینی کرنے والوں کو ووٹ دیں۔ لیے مسلم لیگ نون نے قرضے، جو روز جھوٹ بولتے ہیں عمران صاحب کھڑے ہو کر تقریروں میں، قرضے لیے 10,000 ارب کا قرضہ لیا 5 سال میں، 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، پاور پلانٹس بنائے، LNG پلانٹس لگائے، 1700 کلومیٹر کے موٹر وے دیے، 18,000 کلومیٹر کی سڑکیں دیں، ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، مہنگائی کو 3% پہ رکھا اور ترقی کی شرح کو 5.8% پہ رکھا۔ کیوں نہ ووٹ دے پاکستان کی عوام مسلم لیگ نون کو؟ اس لیے ووٹ دیتی ہے پاکستان کی عوام مسلم لیگ نون کو۔ اور ڈسکا کا الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن کا، جیسے میں نے پہلے کہا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ وہ ڈسکا کے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر آنے والے ہر الیکشن کا سدباب ہے، پاکستان کے اندر آنے والے ہر الیکشن کے ووٹ کا تحفظ ہے، پاکستان کے عوام کے ووٹ کا تحفظ ہے۔ اور یہی بات کل ڈسکا میں ثابت کی۔ میں کارکنان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہادری سے، دلیری سے اور ثابت قدمی سے یہ ثابت کیا کہ جب مینڈیٹ اصل ہوتا ہے، اور مینڈیٹ صرف اصل تب ہوتا ہے جب پاکستان کی عوام ووٹ دیتی ہے، اور یہ ہے عمال نامہ، یہ ہے عمال نامہ فارم
फॉर्म 45 के साथ इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करने वालों का ये है अमालनामा। फॉर्म 47 जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ के बयानिए और शहबाज शरीफ की खिदमत का सबूत है। जब फॉर्म 45 को आरटीएस को बिठाकर उसमें रद्दो बदल नहीं की जाती तो ये होता है, और ये फॉर्म 47 हर उस इलेक्शन का यही फॉर्म 47 होगा जब वोट चोरी नहीं होगा, और जब मैंडेट चोरी होगा तो तब तरक्की की शरह 5.8% से मनफी 0.4% होगी। जब मैंडेट चोरी होगा तब चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो होगी। और मैं अभी सुन रही थी, सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक नाअहल तो है ही, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं, और ये पॉलिसी के तहत बोलते हैं, ये साजिश के तहत बोलते हैं, ये प्लानिंग के तहत बोलते हैं इतना झूठ, और वो इसलिए झूठ बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि वो सच लगने लग जाए। अभी एक तकरीर कर रहे थे खड़े होकर, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। वजीर आजम पाकिस्तान सिलेक्टेड कह रहा है जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की सहूलतकारी करता है। कोई भूखा नहीं सोएगा वो सिलेक्टेड शख्स कह रहा है जिसने आटे की कीमत 35 रुपए किलो से 90 रुपए किलो कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा वो शख्स कह रहा है जिसने चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा जिसने महंगाई की शरह पिछले 2.5 साल में 24% से 50% कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा वो शख्स कह रहा है जिसने पिछले 2.5 साल में 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कोई भूखा नहीं सोएगा वो शख्स कह रहा है जिसने पिछले 2.5 साल के अंदर 5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया है। कोई भूखा नहीं सोएगा जिसने पूरे पाकिस्तान को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की पनाहगाह बना दिया है। इमरान साहब, भूख का ताल्लुक महंगाई से होता है। जब आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी होती है तब आवाम भूखी सोती है। और ये जो तस्वीरें लगा लगा कर 100 करोड़ की तशहीर करते हैं कि मईशत ठीक हो गई है, एक याद रहे कि कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा, दूसरा ये भी याद रहे कि कहते हैं मईशत ठीक हो गई है, और उसकी तशहीर के लिए 100 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जब मईशत ठीक होती है इमरान साहब तो लंगर खाने नहीं कारखाने लगते हैं। जब मईशत सही होती है इमरान साहब तो लोग भूखे नहीं सोते, महंगाई कम होती है तो लोग भूखे नहीं सोते। इमरान साहब, जो बिजली की कीमत और गैस की कीमत है, उसके बाद आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान पनाहगाह बन जाए। आप चाहते हैं जो आपने महंगाई की शरह 3%, 16 और 18% कर दी, आप चाहते हैं पूरा पाकिस्तान भूखा सोए। लेकिन डस्का की आवाम ने, नौशहरा ने, सिंध ने, बलोचिस्तान ने, वजीराबाद ने और इंशाअल्लाह खुशाब में और NA 249 कराची, बल्दिया और आहद टाउन के लोग मिफ्ता इस्माइल को वोट देकर इस पर मोहर लगाएंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौर आएगा। उस वक्त
महंगाई की शरह 3% होगी, तरक्की की शरह 6% से ज्यादा होगी, लोगों के पास दवाई मुफ्त होगी, आटा 35 रुपए और चीनी 52 रुपए किलो जिसने वादा किया था और करके दिखाया था। उसके बाद ये आवाम भी जान गई है कि अब सिर्फ भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी सिर्फ तब ठीक होगी जब नवाज शरीफ आएगा, जब असली मैंडेट आएगा, जब आवाम राज करेगी, जब मुल्क में लंगर खाने नहीं कारखाने लगेंगे। रियासत की जिम्मेदारी आवाम को रोजगार देना और मईशत को ठीक करना और डेवलपमेंट होती है। आवाम की भूख खत्म हो, आवाम को रोजगार मिले। अभी कह रहे थे साहब इनकलाब आ रहा है, इमरान साहब ठीक कह रहे थे। पहले सुनामी आया था तब्दीली का, अब नया नारा है इनकलाब आ रहा है। इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आ रहा है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। इनकलाब आया 2.5 साल बेरोजगारी का। इनकलाब आया नालायकी, नाअहली, करप्शन और चोरी का। लेकिन अब क्योंकि आवाम के वोटों का तहफ्फुज हो रहा है, क्योंकि अब आवाम की तर्जुमानी हो रही है और असल मैंडेट जिसकी हुकूमत, जिसके वजीर आजम की कुर्सी इमरान साहब, इनकलाब आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर सफबंदी हो रही है। इनकलाब आ रहा है जिसकी हुकूमत और वजीर आजम की कुर्सी एक जहाज की महरूने मिन्नत हो, वो आवाम को रिलीफ देगा, वो चीनी, बिजली, गैस, आटा सस्ती करेगा। किससे झूठ बोल रहे? इसका फैसला डस्का की आवाम ने किया है। कराची, सिंध, बलोचिस्तान, नौशहरा, KPK सबकी आवाम करेगी। और आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आपकी कुर्सी एक जहाज की महरूने मिन्नत है। जहाज मुल्तान से पंजाब आया तो पंजाब की हुकूमत फारिग। जहाज अगर मुल्तान से वफाक आया, इस्लामाबाद आया तो वफाक की हुकूमत फारिग। क्योंकि अगर असली मैंडेट होता है तो वो जो वजीर आजम होता है, जो अवामी मैंडेट लगा के लेकर आया होता है, वो अटेंडेंस लिस्ट नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के खाने पर कौन कौन गया था। वो अवाम का रिलीफ देखता है। उसका वक्त उस महरूने मिन्नत कुर्सी के ऊपर अवाम के लिए सर्फ होता है। वो ये नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के साथ FIA के अंदर कितने उनके मेंबरान गए थे। वो ये नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के जहाज की लॉकबुक क्या है। लेकिन जब मैंडेट इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करके लिया जाता है, जब मैंडेट RTS को बिठा कर लिया जाता है, जब मैंडेट वोट चोरी करके लिया जाता है, सियासी मुखालफीन पर झूठे इल्जामात लगा कर लिया जाता है, सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रख कर लिया जाता है, तो फिर जहाजों की लॉकबुक देखी जाती है। उसके बाद खानों के और अशाइये की अटेंडेंस लिस्ट देखी जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक और बहुत बड़ा अभी मतलब जिसको अपनी कुर्सी की लाज ना हो, अपने ओहदे का एहसास ना हो, उस आईनी ओहदे की लाज ना हो, वो झूठ ही बोलता है क्योंकि उसको खौफ होता है कि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो आवाम उसको डस्का की तरह मुस्तरद करेगी। लेकिन अब झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं। अभी कहा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, ये अभी इमरान साहब की तकरीर में 2 मिनट पहले फरमा रहे थे। 30 दिसंबर 2015 नवाज शरीफ ने हेल्थ
प्रोग्राम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और उसके अंदर जिस सूबे को पहला कार्ड दिया गया, जब पहला इजरा किया गया, वहां इमरान खान की हुकूमत थी। ये है नवाज शरीफ। और ये हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए हेल्थ का कार्ड मिला और मौसूफ ने केपीके को इनरोल इसलिए नहीं किया कि कार्ड के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। इसने उस तस्वीर का बदला जिससे केपीके के लोगों को हेल्थ कार्ड मिलना था, नवाज शरीफ की तस्वीर का बदला इसने केपीके की आवाम से लिया। ये इतना छोटी जहनियत का शख्स है और आज कहता है मैंने इंश्योरेंस कार्ड, और साथ एग्जाम्पल देता है मदीना की रियासत की। जो मदीना की रियासत का नाम लेकर झूठ बोले, जो मदीना की रियासत का नाम लेकर करप्शन करे, जो मदीना की रियासत के ऊपर सियासत करे, उसको आवाम मुस्तरद ना करे तो और क्या करे? उसको आवाम इबरत का निशान बनाएगी, उसको अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाएगा। ये वो झूठ है जिनके जरिए कभी कंटेनर पर खड़े होकर, कभी बिल जलाकर, कभी हुंडी के जरिए पैसे मंगाकर, और एहतसाब कहते हैं एहतसाब का इनकलाब तो आ गया। एहतसाब का इनकलाब आया केपीके के एहतसाब कमीशन को बंद करके। एहतसाब का इनकलाब आया आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को पनाहगाह देकर बनी गाला में, वजीर आजम हाउस में, काबीना में। एहतसाब का इनकलाब लाने वाले आज आवाम की आंखों के आगे उनका बयानिया दफन हो चुका है, नेस्तो नाबूद हो चुका है। और जिन्होंने आवाम की खिदमत की, जिन्होंने गुर्बत खत्म की, जिन्होंने महंगाई खत्म की, जिन्होंने मोटरवे बनाए, जिन्होंने सड़कें बनाई, जिन्होंने अस्पताल बनाए, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, जिन्होंने आवाम को मुफ्त दवाई दी, जिन्होंने तरक्की दी, खुशहाली दी, रोशनी दी, उनका अमाल नामा ये है डस्का के इलेक्शन का फॉर्म 47। और उनका अमाल नामा भी यही फॉर्म 47 है। जिन्होंने भूख, अफलास और बेरोजगारी के ऊपर सियासत की, झूठ बोला, करप्शन, मुल्क को लूटा, अवाम की जेबों पर डाका डाला। सैलानी ट्रस्ट वालों को मुबारकबाद देती हूं। कहते हैं पहली दफा, इमरान साहब कहते हैं पहली दफा इन लंगर खानों पे काम हो रहा है। 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिन्होंने 5 करोड़ अवाम को पिछले 2.5 साल में गरीब कर दिया, 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, गुर्बत की शरह में 24% से 50% कर दी, दुगना कर दिया। वो क्या कह रहे हैं कि हमने पहली दफा लंगर खाने पे काम किया है। लंगर खाने सैलानी ट्रस्ट के हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो सदियों से पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं और ईदी ट्रस्ट मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो आवाम की खिदमत करते हैं, ज़कात देते हैं और अफलास, भूख, कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर सियासत करने वाले आवाम को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। और उनको अल्लाह ताला के फजलो करम से सैलानी ट्रस्ट वालों को ताहयात लाइफ टाइम के लिए टैक्स ब्रेक, उनके ऊपर से टैक्स नवाज शरीफ ने खत्म किया था। उसका चर्चा नहीं किया था, उसके ऊपर सियासत नहीं की थी, उसके ऊपर मदीना की रियासत की एग्जाम्पल्स नहीं दी थी। सैलानी वालों को टैक्स ब्रेक किया था। ये मैं आज पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। और जो शरीफ कॉम्प्लेक्स है, हमें मना किया जाता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। जो शरीफ ट्रस्ट है वो गरीब आवाम के साथ की जो खिदमत कर रहा है वो अल्लाह ताला और शरीफ खानदान के दरमियान है। एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले, ये होती है आवाम की खिदमत। तो मैं सैलानी ट्रस्ट वालों को भी मुबारकबाद देती हूँ और मैं ये भी पैगाम देती हूँ आज मीडिया के तवस्सुत से कि वो वक्त दूर नहीं
کہ انشاءاللہ اب پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ جب ان کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے تو اس سے ان کی زندگیوں میں عذاب آتا ہے، مہنگائی کا، بے روزگاری کا. یہ جان چکی ہے پاکستان کی عوام، اور اس کا جو ترجمانی ہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہے. اور مجھے امید ہے کہ 29 اپریل کو اور خوشاب میں 29 کو کراچی میں 249 NA جہاں آہت ٹاؤن اور بلدیہ کے لوگ یہ ثابت کریں گے کہ ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو اپنے ووٹ کے ذریعے گھر بھیجیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ آئندہ آنے والے ہر الیکشن میں وہاں کے بھی جو افسران ہیں جو ڈیوٹیز پہ تعینات کیے گئے ہیں، جنہوں نے 10 اپریل کو ان نالائقوں ووٹ چوروں کی بات نہیں مانی اور اپنی ڈیوٹی کی، الیکشن کمیشن کے عملے کو، الیکشن کمیشن کو بھی مبارکباد دیتی ہوں اور خراج تحسین کرتی ہوں، اور اسی طرح امید رکھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے ہر الیکشن میں وہ عوام کے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ جب نواز شریف آئے گا، شہباز شریف آئے گا تو ملک کے اندر مہنگائی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، کشمیر کو مودی کی جھولی سے واپس لیا جائے گا، اور یہ نالائق جو اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کو، جو اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس کو، ان کو گھر بھیجے گی عوام. بالکل گھبرائے نہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کا جہاز ملتان سے اڑنے والا ہے. اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، پہلا پڑاؤ پنجاب ہے، دوسرا پڑاؤ اسلام آباد ہے. میڈم یہ بتائیے گا آپ نے بات کی تیاری کی، اس سے پہلے شاید کپتان عباسی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں جہانگیر ترین کے بارے میں، تو کیا مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کا اب آسرا جہانگیر ترین ہے کہ آپ بھی انہیں کو امید لگا کے بیٹھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آسرا ان کا یہ ہوتا ہے جنہوں نے وہی جہاز ملتان سے بلا کر پنجاب اور اسلام آباد میں مینڈیٹ کو چوری کر کے مسلط کیا جاتا ہے. آسرا ان کا نہیں ہوتا جہاں آج بھی ڈسکا میں جو پیغام ہے وہ پورے پاکستان میں پیغام ہے. جن کا آسرا اللہ تعالیٰ اور پاکستان کی عوام ہوتی ہے ان کو کسی قسم کے آسرے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں لیکن جن آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں، ووٹ چوروں اور کشمیر فروشوں جو ایسی جھوٹ، کرپشن، نالائکی اور نااہلی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا آسرا، اور جن کو پتا ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ جہانگیر ترین کا، اس سے حکومت بنی ہے، یہ تو معلوم ہے نا عمران خان کو، یہ تو سب کو معلوم ہے. تو پھر وہ اسی آسرے کے اوپر آسرا رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ اور عوام کا آسرا نہیں ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ غیر جانبدار تھی یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بتائیں. دیکھیں ہاں یا نہ میں اسٹیبلشمنٹ، ووٹ چور اور جو عوام کے مینڈیٹ پر شک خون مارتے ہیں، جب وہ ووٹ کے ڈبے سے دور رہتے ہیں تو 19 فروری والا نتیجہ نہیں آتا، 10 اپریل والا نتیجہ آتا ہے، 2018 والا نتیجہ نہیں آتا، 2021 والا نتیجہ آتا ہے. اور یہی بات ہے جو ثابت کرتی ہے کہ عوام کے ووٹ کا تحفظ آئینی فریضہ ہے ہم سب کا جو یہاں کھڑے ہیں. اور میں میڈیا کو، رپورٹرز کو، کیمرہ مین کو، سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے 19 فروری کو اس ووٹ چوری کو بے نقاب کیا تھا، الیکشن کمیشن کے عملے کو بے نقاب کیا تھا، اور جس طرح کل 10 اپریل کو کچھ نے کوشش کی، میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ پارٹیاں بہت بڑی ہوتی ہیں چینل سے، اور اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں چینلز اور پارٹیز بھی پولیٹیکل سسٹم میں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جنہوں نے ذمہ داری کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ، جرت مندی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے فرائض، چاہے وہ رپورٹرز ہوں، کیمرہ مین ہوں، چاہے وہ چینلز ہوں، چاہے ان کی مینجمنٹ ہو،
उन्होंने आज हक अदा किया है पाकिस्तान की आवाम के वोट की तहफ़्फ़ुज़ का। ये बताएं कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून तमाम ज़मीनी इंतखाब लड़ रही है, दूसरी तरफ असम्बलियों से इस्तीफे की बात भी हो रही थी जिस पर पीडीएम में इख्तिलाफ हुआ। पीडीएम का क्या फ्यूचर है और क्या इन ज़मीनी इलेक्शंस को जीतने के बाद भी मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफे क्या कायम रहेगी? देखिए, बात यह है कि मैं वाज़िया कर दूं कि पीडीएम के अंदर बाई इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ था। ये पीडीएम की जमातों ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया था और सेनेट के इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ था। और ये बात प्लीज़ वाज़िया रहे कि ये इस्तीफ़ों के ऊपर लड़ाई नहीं थी। पीडीएम की उस मीटिंग का फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी क्योंकि इस्तीफ़े लॉन्ग मार्च को आपस में मुंसलिक नहीं करना चाहती, तो वो जमहूरी स्पेस दी गई पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीईसी में जाएंगे और आपको इस बात से पीडीएम को करेंगे इत्तला, और उसके बाद पीडीएम का इजलास होना था। ये जो तनाज़ा है ये अपोजिशन लीडर जो सेनेट में है बाप पार्टी से वोट लेकर है, उस हुकूमती पार्टी से जिस करता है पीडीएम के मकासद की, उसका वोट लेकर, उन आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों का वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर अगर बनाया जाए तो ये पीडीएम को मंजूर नहीं है। ये पीडीएम की जमातों के मकासद की और उस जो जदोजहद है उसकी नफी करता है। तो फर्क को प्लीज समझिए कि ये तनाज़ा जो है ये इस बात पर है, और इस पर जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और वो जल्द ही इसका फ्यूचर का जो मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी है और लाए अमल है उसका ऐलान करें। मरीन साहिबा, आपकी पीपल्स पार्टी में आपकी काउंटर पार्ट हैं शाजिया मरी साहिबा, उन्होंने आज पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया। मुस्लिम लीग नून की दस्का में जो फतह है वो एक्चुअली बिलावल भुट्टो जरदारी के नज़रिए की फतह है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि निज़ाम में रहकर आप स्ट्रगल की जाए, ना कि इस्तीफे दिए जाए। देखिए शाजिया मरी, मेरी 249 में क्या पीपल्स पीडीएम आप कह रही हैं, तो 249 में क्या पीपल्स पार्टी आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी असूली तौर पर? देखिए, पहले तो शाजिया मरी मेरी कॉलीग भी है, मेरी दोस्त भी हैं बड़ी अच्छी, और अच्छी खातून भी हैं, लेकिन और दुख होता है जब जवाब देना पड़ता है, क्योंकि अब वो ऐसी पोजीशन में आ गई हैं कि अगर ये बिलावल साहब के बयानिए की फतह है तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट दस्का में इलेक्शन लड़ रहा था, फतह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हुई है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं एक वजीर की सुबह से प्रेस टॉक सुन रही थी, फवाद चौधरी साहब की। मैं अमूमन उनको जवाब देती नहीं हूँ, क्योंकि जो शख्स नवाज शरीफ के नज़रिए पे बात कर रहा है और उसको तनकीद कर रहा है वो दर्जनों पार्टियां बदल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और सुबह से रो रहे हैं। कल भी मशवरा दिया था, सुबह 10 बजे ऐलान कर दिया था फवाद चौधरी ने अपनी हार का। मैंने कल भी मशवरा दिया था कि रोएं मत, लेकिन आज भी उनको पैगाम है कि आप रोएं, चीखें या पिटें। मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से दस्का की आवाम के वोट से इलेक्शन जीत चुकी। अच्छा मैडम, नून लीग का शुरू से ये स्टांस है कि ये जो सिस्टम है इसमें रहते हुए आदम एतमाद अगर पंजाब में होता है या वफाक में होता है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, फ्रेश इलेक्शन। देखिए हमारा मैं जो बात कर रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब के जो जहाज की आपने बात की है, एक स्पेस बन रही है, अगर पीटीआई आपस में दोनों साइड से टूटती है, वफाक में भी पंजाब में भी, तो आदम एतमाद की तरफ जाएगी पीटीएम या नून लीग? देखिए बात यह है कि जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ की बात है जो मुल्तान से उड़ने वाला है, पंजाब में लैंड करेगा और फिर वफाक में लैंड करेगा, वो पैगाम मेरा सिर्फ इमरान साहब को है, जो उसी जहाज़ की वजह से पंजाब में हुकूमत है और वफाक में हुकूमत है। ये पैगाम मेरा पीडीएम की जमातों या मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को आवाम के वोट से जीतना आता है, जीतती है और जीतना जानती है। लेकिन जब धुंध छाती है, आरटीएस बैठता है, इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी होता है, जो कल नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ आसरा अल्लाह ताला और पाकिस्तान की 249 में इंशाअल्लाह, देखिए 249 में पीडीएम की तमाम जमातों ने सपोर्ट की है और 249 में इंशाअल्लाह दस्का की आवाम की तरह आहत टाउन और बल्दिया, मिफ्ता इस्माइल, शेर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को वोट देंगे। और ये एक और बात बता दूं कि 19 फरवरी को जिस तरह हम जीत चुके थे ना, जो कल 10 अप्रैल को जिसकी तस्दीक हुई है, उसी तरह 2018 में
NA-249 शहबाज शरीफ जीत चुके थे, जहां उस शख्स को जिताया गया जिसने कानून आइन के पूरे निजाम को चक्कर दिया, झूठ बोला, वोट चोरी किया। ये उस वक्त भी शहबाज शरीफ की सीट जीत चुके थे जब रीकाउंटिंग में शहबाज शरीफ को हराया गया, और 29 अप्रैल को, जैसे 19 फरवरी की तस्दीक 10 अप्रैल ने की है, इसी तरह 2018 के शहबाज शरीफ के जीते हुए इलेक्शन की तस्दीक अवाम के वोटों के साथ 29 अप्रैल को होगी। बहुत शुक्रिया।